Friends, welcome to Moonchild Chemistry. In first video, we learned about some basic topic. So let's move further. Let's move further. What we learned in first lecture, we learned about the atom as a nucleus with orbital electron, and then on second we learned about atomic spectra of hydrogen and the Bohr theory. And this we learned about that nucleus has proton and neutrons. So proton become positive charge due to presence of proton, which is a positive particle, and the positive charge get balanced due to presence of same number of electron which revolve around the nucleus. We also learn about atomic number. Then we also learn about in atomic spectra of hydrogen and Bohr's theory that what happens when any substance consume any form of energy, okay, and when it emits, and through that emission of radiation, what we can learn from the spectrum which is studied in spectroscopy, where uh, absorbed or emitted radiation is being studied. We also learned that what happens to hydrogen when it absorb energy and it emit, and during emission of radiation by hydrogen atoms, what spectrum we observed, that there was a four line which is uh, naked to our, which is no observable to our eyesight, okay, and it was in highest uh, it was in somewhere higher wavelength, means near visible region it was visible. Then further wavelength decreases, these lines get come together, okay, and when the four line is formed in the visible region, it was called as Balmer series. And when the line form in ultraviolet regions, it is called as Lyman series. And when the line form in infrared region, it is called Paschen series. And then further, including Paschen, there are further four series, that is bracket series, Piffen series, Humphrey series. All this in this series, line is formed in infrared region, and infrared region we know has a longest wavelength than visible region, and visible region has longest wavelength than ultraviolet region. So uh, here the formula is Paschen mu number is equal mu bar is equal to r in bracket 1 3 square minus 1 n square. N is 4, 5, 6, 7. Bracket is mu bar is equal to r 1 by 4 square minus 1 by n square. N is 5, 6, 7, 8. P1 is mu bar is equal to r in bracket 1 by 5 square minus 1 by n square. N is 6, 7, 8, 9. In the early chapter of this century, attempts were made to obtain physical picture of the atom. From this and other evidence, Thomson had shown in 1896 that application of a high electrical potential across a gas gave electrons, suggesting that these were present in atom. Rutherford suggested that from alpha particle scattering experiment, and that an atoms consist of heavy positively charged nucleus with a sufficient number of electrons around it to make the atom electrically neutral. In 1930, Niels Bohr combined this idea and suggested that the atomic nucleus was surrounded by electrons moving in orbits like planets around the sun.
He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1922 for his work on the structure of atom. Several problems arise with this concept. तो अर्ली सेंचुरी में काफ़ी बहुत सारे एविडेंस आए थे एटम की फिज़िकल पिक्चर्स के बारे में। थॉमसन इन्होंने दिखाया था 1896 में कि हाईली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल गैसेस जो है अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स देता है, रिप्रेजेंट रहता है एटम में। रुदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर होता है एक्सपेरिमेंट में जब एटम में हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है और वो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। 1913 नील बोहर्स ने ये रुदरफोर्ड और थॉमसन को ये दोनों भी जो आइडिया थे थॉमसन रुदरफोर्ड को उसको कंबाइन किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन से। वो इलेक्ट्रॉन जो मूव होते हैं ऑर्बिट्स में, जैसे कि प्लैनेट्स मूव होते हैं सन के अराउंड। सो नील्स बोहर को ये आइडियाज़ को कंबाइन करके अवार्ड किया था 1922 में। फिज़िक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्सप्लेन करने के लिए। पर इस कंसेप्ट में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि द इलेक्ट्रॉन माइट बी एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन ग्रेजुअली। Why should electron move in an orbit around the nucleus? Since the nucleus and the electron have opposite charges, they should attract each other. Thus, one would expect the electron to spiral inward until eventually they collide with the nucleus. तो इसमें प्रॉब्लम क्या था इस कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रॉन शायद से स्लो डाउन हो सकता है ग्रेजुअली। इलेक्ट्रॉन को मूव क्यों होना चाहिए ऑर्बिट में राउंड, न्यूक्लियस के से राउंडली क्यों मूव होना चाहिए ऑर्बिट में, और ऑर्बिट में ही क्यों, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऑपोजिटली चार्ज है तो ये अट्रैक्टेड क्यों है एक दूसरे से। और क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरली इनवर्ड रहता है तब तक जब तक वो न्यूक्लियस के साथ कोलाइड नहीं होता है। मतलब बोलने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है लेकिन वो कोलाइड क्यों नहीं होता है। तो बोहर्स ने पोस्टुलेट किया an electron did not radiate energy if it stayed in one orbit and therefore did not slow down। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए बोहर्स ने एक्सप्लेन किया कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है अगर वो एक ऑर्बिट में रहेगा तो, और वहाँ पे इसलिए इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन नहीं होता है क्योंकि अगर वो ऑर्बिट में रहेगा, अगर वो ऑर्बिट में ही रहेगा एक ही ऑर्बिट में तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। फिर वाई शुड इलेक्ट्रॉन मूव इन एन ऑर्बिट राउंड द न्यूक्लियस, क्यों इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में ही न्यूक्लियस के चक्कर लगाने चाहिए। तो बोहर्स ने एक्सप्लेन किया व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर it either radiate or absorb energy. If it moved towards the nucleus, energy was radiated, and if it moved away from the nucleus, energy was absorbed। बोहर्स ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में मूव होता है और तभी या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है या फिर अब्जॉर्ब करता है। जो वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तब अगर वो न्यूक्लियस एनर्जी की तरफ रेडिएट होता है तो फिर वो न्यूक्लियस एनर्जी से
दूर चला जाता है जो ऑब्जॉर्ब होता है. इफ़ इट मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एनर्जी वॉज रेडिएटेड. ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कब रेडिएट होता है, जब वो न्यूक्लियस एनर्जी की तरफ जाता है. एंड इफ़ इट मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी वॉज ऑब्जॉर्ब. और इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ऑब्जॉर्ब करता है जब वो न्यूक्लियस एनर्जी से दूर चला जाता है. तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब रेडिएट होता है तो वो न्यूक्लियस एनर्जी के तरफ आता है, और जो ऑब्जॉर्ब होता है तो न्यूक्लियस एनर्जी से दूर चला जाता है. ठीक है. सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए मूव होता है ऑर्बिट में, और एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में मूव होता है क्योंकि उस वक्त वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकता है और रेडिएट हो सकता है. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होता है या न्यूक्लियस एनर्जी की तरफ जाता है तब वो रेडिएट होता है. और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है तब वो न्यूक्लियस एनर्जी से दूर चला जाता है. तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो ऑफकोर्स वो न्यूक्लियर चार्जेस से दूर चला जाता है, एटम से भी चला जाता है, तो इजेक्ट हो जाता है और तब एमिशंस होते हैं. फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिमेन, हाँ, और सिंस द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिटली चार्ज दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर. दिस वन would expect the nucleus to spiral inwards until eventually they collide with the nucleus. अब सेकेंड क्वेश्चन ये था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑपोजिट है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो क्यों इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरली इनवर्ड होता है और वो कोलाइड होने का भी चांसेस रहता है. ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन स्पाइरली इनवर्ड चला जा सकता है, न्यूक्लियस से कोलाइड हो सकता है. तो और एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ने कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन इट्स ऑर्बिट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस व्हिच टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स the nucleus must be equal to the centrifugal force which tend to throw the electron out of its orbit. इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट में रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में. तो उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाता है जो हमेशा इक्वल रहता है. सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में रहता है. हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऑर्बिट में ही रहता है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में. वो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, और वो न्यूक्लियस जो है इक्वल रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से. वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को उसी के ऑर्बिट में ही रखता है, विच टेंड टू थ्रो द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट्स. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को उसी के ऑर्बिट्स से बाहर रखता है. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करता है तो वही जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट के साथ बाहर रखता है. इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है, जो मूव होता है वेलोसिटी और रेडियस ऑर्बिट है वो r है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है mv²/r है. ठीक है, क्योंकि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस के तरफ वही फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट के साथ बाहर रखता है. If the charge on the electron is E, the number of charge on the nucleus Z and permittivity of vacuum E0, Coulomb attractive force is equal to Z(E²/4 pi E0 R². अगर चार्ज जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में वो E है, नंबर ऑफ चार्ज जो न्यूक्लियस में है वो Z है, और वैक्यूम का परमिटिविटी E0 है, तो कूलम में अट्रैक्टिव फोर्स इज Z(E²/4 pi E0 R² है. mv² इज अपॉन r. तो mv² क्या है,
mv स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? वही फोर्स जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो कूलोमिक अट्रैक्टिव फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कूलोमिक फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और वो हमेशा इक्वल रहता है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πe0r स्क्वायर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखा है न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4πe0mr स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या है? दोनों साइड में आर और आर है, तो यहाँ का आर कट हो जाएगा, यहाँ का आर कट हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम आर यहाँ पे फिर रहेगा, एम शिफ्ट होगा, तो वी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 4πe0mr। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, energy is not continuous but is discrete. This means that energy occur in packets called quanta of magnitude h upon 2 pi, where h is Planck constant. The energy of an electron in an orbit that is its angular moment mvr must be equal to a whole number of quanta. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी जो है कंटिन्यूस रहता है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं रहता है पर वो डिस्क्रीट रहता है। इसका मतलब ये है कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है में के फॉर्म में रहता है, उसे क्वांटा कहते हैं और उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है h अपॉन 2 पाई। h है प्लैंक कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो ऑर्बिट में रहता है और एंगुलर मोमेंट mvr है जो इक्वल रहता है नंबर ऑफ n क्वांटा से। तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। u इज nh अपॉन 2 पाई mr। u स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो 1.2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z e स्क्वायर अपॉन 4πe0mr इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ये शिफ्ट होता है, दोनों में कॉमन क्या है? m कैंसिल होता है, r कैंसिल होता है, यहाँ पे m और r रहता है। फिर z e 4 पाई कट होता है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पाई रहता है सिर्फ। तो ये जेड ई स्क्वायर ये शिफ्ट होता है और आर इक्वल टू E0 n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन पाई मी स्क्वायर जेड रहता है। हाइड्रोजन चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जेड 1 एंड इफ n इज 1 आर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.0529 n equal to 2 is r is equal to 2 square multiply by 0.0529 n is equal to 3 r is equal to 3 square multiply by 0.0529। This give a picture of hydrogen atom where an electron move in circular orbits of radius proportional to 1 square, 2 square, 3 square. The orbit will only radiate energy when the electron jumps from one orbit to another. The kinetic energy of an electron is minus half mv square. तो ये पिक्चर देता है हाइड्रोजन एटम का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होता है रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट पे जो प्रोपोर्शनल रहता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। एटम जो है ये रेडिएट करता है, ये सिर्फ रेडिएट करता है एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन जब होता है एक ऑर्बिट से लेकर दूसरे में, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को वो है
half mv square. E is equal to minus half mv square is equal to minus ze square upon 8 by e0 r. ठीक है, फिर r जो है उसको 1.3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। r जो है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये फॉर्म मिलता है z स्क्वायर e0 z square m upon 8 e0 square n square h square. If an electron jump from an initial orbit I to a final orbit f, the change in energy delta E is, अगर इलेक्ट्रॉन जंप होता है इनिशियल ऑर्बिट से I में और फाइनल ऑर्बिट में जाता है f में, तो जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा ही, वो क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर m अपॉन 8 e0 स्क्वायर ni स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 4 m upon 8 e0 square n f square s square m upon 8 e0 square n square h square n back 1 upon n f square minus 1 upon ni square. Energy is related to wavelength is as a wave number, so this equation is of same form as a Rydberg equation. Energy related रहता है wavelength से h से वेव नंबर, और वो सेम फॉर्म में रहता है जैसे कि रिडबर्ग कॉन्सेप्ट। वेव नंबर z स्क्वायर e फॉर m 8 e0 स्क्वायर क्यूब c n अपॉन n f स्क्वायर माइनस n i स्क्वायर। वेव नंबर इज इक्वल टू r 1 अपॉन n i स्क्वायर माइनस 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square Rydberg equation. This Rydberg constant is r z square e4 m 8 e0 square h cube c. Experimental value of r is 1.097373 10 raised to 7 m minus 1 in good agreement with the theoretical value of 1.096776 10 raised to 7 m minus 1. The Beer theory provides an explanation of the atomic spectra of hydrogen. The different series of spectral length can be obtained by varying the value of n, I and f in equation. ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो है r वो है 1.097373 10 raised to square m minus 1. गुड एग्रीमेंट है थ्योरेटिकल वैल्यू 1.096776 10 raised to 7 minus 1 से। बहुत थ्योरी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एक्सप्लेनेशन को। अलग अलग सीरीज जो है स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्टेन होता है, वेरी करता है एन आई और एन एफ, जो इक्वेशन 1.4 में है। तो एन एफ 1 रहता है और एन आई 2 3 4 रहता है, तो हमें लाइमन सीरीज ऑफ लाइन ऑब्टेन होता है जो यूवी रीजन में है। अगर एन एफ 2 रहता है, एन आई 3 4 5 रहता है, तो बैलमर सीरीज रहता है, और बैलमर सीरीज जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में रहता है। अगर एन इज़ 3 है तो एन एफ 3 है और एन आई 4 5 6 है, तो वो पार्शियल सीरीज देता है। और एन एफ जो है 4 है, एन आई 4 5 6 7 है, ब्रैकेट सीरीज देता है। एन एफ अगर 6 है, एन आई 7 8 9 है, तो बीफन सीरीज देता है। तो बहुत सारे ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के बीच में, जो फिगर 1.4 में है, मतलब यहाँ पर है। हम इसके बारे में सीखेंगे आफ्टर with this concept refinement to the Bohr theory. It has been assumed that nucleus remains stationary except for rotating on its own axis
This would be true if the mass of the nucleus were infinite, but the ratio of the mass of an electron to the mass of the hydrogen nucleus is 1 upon 1836. The nucleus actually oscillates slightly above the center of gravity, and to allow for this mass of the electron, m is replaced by reduced mass mu in equation. Mu is m small m capital M upon m plus m. ये अज्यूम किया जाता है कि न्यूक्लियस स्टेशनरी रहता है एक्सेप्ट वो रोटेट होता है अपने एक्सिस पे। ये भी ट्रू है कि न्यूक्लियस का मास जो है इनफाइनाइट है, लेकिन उसका पर इलेक्ट्रॉन का जो मास रेशियो है हाइड्रोजन न्यूक्लियस के मास से वो है 1/1836। तो न्यूक्लियस जो है एक्चुअली ऑसिलेट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो स्मॉल m है, वो रिप्लेस होता है रिड्यूस मास म्यू से। तो कैपिटल M है वो जो कैपिटल M है ये न्यूक्लियस को मास को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है the increase of the mass of the nucleus explain why different isotopes of an element produce line in the spectrums at slightly different wave number। न्यूक्लियस का जो इंक्लूजन है एक्सप्लेन करता है कि क्यों एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप्स लाइन प्रोड्यूस करता है स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेव नंबर पे। ठीक है, तो कैपिटल M बताता है कि एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप्स जो है उनका जो लाइन जो है वो अलग अलग वेव नंबर में प्रोड्यूस क्यों होता है स्पेक्ट्रम में। द ऑर्बिट्स आर समटाइम्स डिनोटेड बाय लेटर K, L, M, N counting outward from the nucleus, and they are also number 1, 2, 3, 4. This number is called principal quantum number। ऑर्बिट जो है वो डिनोट होता है K, L और M, N काउंटिंग में काउंट होता है न्यूक्लियस के बाहर से। उसे नंबर होता है 1, 2, 3, 4। ये नंबर जो उसको कहते हैं क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल है N। ठीक है, और फिर it is therefore possible to define which circular orbit is under consideration by specifying the quantum number। और ये पॉसिबल है डिफाइन करना कि कौन से सर्कुलर ऑर्बिट जो है कंसीडर करना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करके। ठीक है, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट to another orbit, it should be a single sharp line in the spectrum corresponding precisely to the energy difference between the initial and final orbit। जब भी इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है तो एक सिंगल शार्प लाइन आना चाहिए स्पेक्ट्रम में, और वो प्रिसाइसली करस्पॉन्ड करता है एनर्जी प्रेफरेंस जो डिफरेंस जो एनर्जी डिफरेंस है इनिशियल फाइनल ऑर्बिट के बीच में, तो प्रिसाइसली रहना चाहिए अगर सिंगल शार्प लाइन चाहिए स्पेक्ट्रम में। इफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड विद द हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर इट इज फॉर्म द सम ऑफ द लाइन रिवील फाइन स्ट्रक्चर। अगर इन केस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर ऑब्जर्व करेंगे हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उस एक शार्प लाइन में और भी फाइन स्ट्रक्चर्स रिवील होते हैं। दिस मीन दैट लाइन इज रियली कंपोज्ड ऑफ सेवरल लाइन क्लोज टुगेदर। मतलब हमारा एक शार्प लाइन जो स्पेक्ट्रम में है उसी सिंगल लाइन में और भी बहुत सारे लाइन है, से बहुत सारे लाइन है जो कंपोज है और एक दूसरे के साथ क्लोज है। सो वी कैन नॉट सी थ्रू बाय नेकेड आई, वी हैव टू यूज हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर सो वी कैन सी दैट विदिन द शार्प लाइन this fine to see the fine structure within the sharp single line।
which is composed and which is close to each other. Sommerfeld explained the splittings of line by assuming that some of the orbits were elliptical and they persist in space around the nucleus. सोमरफेल्ड ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्प्लिटिंग लाइन स्प्लिटिंग है ये लाइन स्प्लिटिंग जो है ये एक्सप्लेन किया था कुछ ऑर्बिट के थ्रू। वो ऑर्बिट्स जो एलिप्टिकल है, ठीक है, और न्यूक्लियस के स्पेस में के आजू बाजू में है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सोमरफेल्ड ने लाइन स्प्लिटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया ऐसा एक अजम्पशन उन्होंने किया था कि एक ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस के अराउंड है और वो एलिप्टिकल शेप में है, ठीक है। फॉर द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 एंड देयर इज अ सर्कुलर ऑर्बिट। We will learn this further in next video.